Now Tinkercad. This is a webinar and we don't have much Arduino boards with us. Even most of you are not having any Arduino with you. So we are going to use an online simulator. This online simulator is known as Tinkercad. You can go to any browser window and type tinkercad.com, then you can use it. So you don't have to download anything. You can even use it on your mobile, but it will be sort of difficult. Then we can make our circuit online without having any physical modules. The best thing about this simulation software is it supports Arduino, and we can code Arduino online without having any physical board. So let's see what is a Tinkercad. So here I have opened the tinkercad.com website. So you have to open this, then you have to log in into your account, or you can make a new account. Then you will see this type of dashboard. So this one is a Tinkercad software. It supports 3D designing, circuits, code block, and you can also give lessons. Teachers can sign up on it and give lessons to students. So we are going to use the circuits part only. So go to circuits. Then we have to click on create a new circuit. So on the right hand side we have components. And this one is our sketchboard. We can click on any component and then place here. So if we have to make a simple circuit, like we have a battery with us, an LED and a resistance. Then we can just click on its connection points. Then we can make connections like this. So in this way we can make very easy circuits online. Then we can click on start simulation, and you can see the LED is blinking. So LED is glowing. In the same way you can simulate any of the circuit you want. Then you also have undo, redo buttons, delete button, rotate buttons, etc. So now we are going to take a look at the Arduino. So I am going to delete everything. So if you click on all components, and in the microcontroller section you have Arduino Uno R3. Click it. Output we are going to use an LED. Then the cathode of the LED I am going to connect with ground, and the anode of the LED I am going to attach to any of the digital pins. I am using D13 here. So now we will code the Arduino so that our LED will glow.
To code the Arduino, I am going to click on code. Then I have to select my board. So this is the coding part. Now we will write a very simple code here. First of all, we have to set up our Arduino, and we have the function the void setup function in an Arduino works only once. Whenever we turn on an Arduino, the first function to execute is the void setup function. It will execute only once. This function we usually give the parameters that have to be set up. Like whenever we are setting up an LCD screen, so we have to set up it once, then we have to give it data. So for the setup part, we write everything in the setup function. So we are using the pin number 13. So firstly, we have to set the pin number 13 as output. So we will write pin mode. So we have set our pin number 13 as output. Now we will use another function. Will repeat itself thousands of times. So this function will keep on repeating every time. So the base we have to write whatever we want to do in our Arduino. So the main code will be written here. Like if you have programmed something like C++ or anything, then you have seen the function void main, and this function void main is similar to the this function loop is similar to the function void main. So we can write here digital so we are setting a high signal on the pin number 13. Then whenever we will start, let's see after starting the simulation what happens. Now you can see the LED is blown. Click on the LED, you can see what amount of current is going through the LED. Hello? Yes, Prashant. हाँ प्रशांत. ओके, तो सुन रहे हैं सभी को? हाँ हाँ. ठीक है, तो आपको ये समझ आ गया हमारी एलईडी ग्लो हो चुकी है? हाँ आ गया. हाँ क्लियर. ओके, सो नाउ वी विल स्टॉप दिस वीडियो. अब हम एलईडी को ब्लिंक करवाना चाहते हैं. ब्लिंक का मतलब हमारी एलईडी कुछ टाइम के लिए ऑन होगी और कुछ टाइम के लिए ऑफ होगी. तो हमें एलईडी को ब्लिंक करवाने के लिए पहले हमें कुछ टाइम उसको ऑन करना है, हमें कुछ देर उसको वेट करवाना है. वेट मतलब हम उसको थोड़ी देर के लिए एक डिले देंगे. लेट सपोज हम डिले दे रहे हैं 500 माइक्रोसेकंड का. यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर जो भी लिखा जाएगा वो माइक्रो सेकेंड्स में लिखा जाएगा. तो अगर हम 1 सेकेंड का देना चाहते हैं तो हम वहाँ पे 1000 लिख सकते हैं. तो देन हम लिखेंगे, अब हम इसे अब ये आधे सेकंड के लिए ऑन हो चुकी है, अब हमें इसे बंद करना है. हमने इसको बंद कर दिया. अब हम इसको थोड़ी देर और वेट करने के लिए बोलेंगे. तो हमने एक और डिले दे दिया 500 माइक्रोसेकंड का. सो अकॉर्डिंग टू दिस कोड ये आधे सेकंड के लिए ऑन होगी
और आधे सेकंड के लिए ऑफ हो जाएगी। लेट्स सी क्या होता है। एज यू कैन सी है एलईडी कुछ टाइम के लिए ऑन हो रही है और कुछ टाइम के लिए ऑफ। सेम वे हम चाहते हैं कि ये कम देर के लिए हो और ऑन ज़्यादा के लिए। हम इसके डिले के साथ थोड़ा बहुत आगे पीछे थैंक यू। यहाँ तक सब समझ आ गया? हाँ यस हाँ प्रशांत। ओके। अब अगर तुम्हारे मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो अभी। कोई क्वेश्चन नहीं है। तो चलो हम कुछ और ट्राई करते हैं। यहाँ पे हमारे पास है एक RGB LED, हम इसे रखते हैं। तो एक RGB LED क्या होता है, उसके अंदर एक ही LED के अंदर 3 कलर्स होते हैं। एक होता है रेड, फिर होता है ब्लू और एक होता है ग्रीन। तो हम इसके कैथोड को रखेंगे ग्राउंड पे। रेड को रखते हैं D2 पे और ग्रीन रखते हैं D3 पे और ग्रीन को रखते हैं D। तो इसको हम कोड करके देखते हैं। अब हम यूज कर रहे हैं पिन नंबर 2। तो हमें पिन नंबर 2, 3, 4 का आउटपुट सेट करना पड़ेगा। तो हम रखेंगे पिन नंबर वीडियो सर। प्रशांत 4 कॉमा आउटपुट के बाद सेमीकोलन। क्या? हाँ तुमने कोलन लगा दिया है। सेमीकोलन ओके ओके तुमने गलती से कर दिया। ओके। तो अब हम क्या कर जो हमारे पास इस एलईडी में 3 ऑप्शन है, रेड, ग्रीन या ब्लू। तो हम एक काम करते हैं, हम तीनों को एक एक बार ऑन करके देखते हैं। पहले पिन नंबर 2 को हाई करेंगे, फिर हम एक डिले देंगे, फिर हम इसको बंद कर देंगे। तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम पिन नंबर 2 को एक बार हाई कर रहे हैं, 1 सेकंड का डिले दे रहे हैं, फिर इसको बंद कर रहे हैं। देन एट द सेम टाइम हम पिन नंबर 3 को हाई कर रहे हैं,
पे डिले दे रहे हैं और फिर हम पिन नंबर 3 को इसका सिमुलेशन स्टार्ट करके देखते हैं क्या होगा। अब वो रेड फिर ब्लू फिर रेड फिर ब्लू, इस टाइप से हमारे 2 कलर्स आ रहे हैं। अब हम इसमें ही सेम तरीके से 4 को भी करके देखते हैं। तो यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। नहीं। नो। नहीं। तो हमने अभी एक नॉर्मल एलईडी को आर्डिनो के साथ लगाना सीखा, देन हमने एक आरजीबी एलईडी को आर्डिनो के साथ लगाना सीखा। तो हमने एक बेसिक देखा कि आर्डिनो को कोड कैसे किया जाता है। देन इसके बाद हम देखेंगे कि एक पुश बटन को आर्डिनो के साथ कैसे इंटरफेस किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि एक अल्ट्रासोनिक सेंसर को कैसे किया जाता है, एक आईआर रिसीवर को, देन एक टेम्परेचर सेंसर को, एक गैस सेंसर को, एंड देन एक लाइट बल्ब को, जो हमारा घर में नॉर्मल लाइट बल्ब होता है, आप उसको भी आर्डिनो के साथ चला सकते हो। हम वो देखेंगे। देन उसके बाद हम देखेंगे मोटर्स, हम क्या क्या टाइप की मोटर्स एक आर्डिनो के साथ चला सकते हैं। जो नॉर्मल जो घर में तो लाइट, क्या जो नॉर्मल लाइट बल्ब होता है वो तो 5 वोल्ट से ज़्यादा कंजम्पशन करता है, तो उसको कैसे कनेक्ट कर सकते हैं? कनेक्ट करने के लिए हम एक रिले का यूज़ करेंगे। किस चीज़ का यूज़ करेंगे? रिले। अच्छा, ठीक है। और हमने आज ही एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले को कैसे एक 8051 के साथ किया है, हमने वो देखा था। आज हम इसको देखते हैं एक आर्डिनो के साथ कैसे करते हैं। तो एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले के अंदर 8 सेक्शंस होते हैं यहाँ पर, और 8वां होता है ये डॉट। तो और इसी टाइप से एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले के अंदर 10 पिन्स होते हैं कॉमन, और बाकी 8 होती हैं हमारी एक एलईडी के लिए। तो एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले एक सिंपल एलईडी जैसी ही होती है, बस उसके अंदर 8 एलईडीज होती हैं। तो जैसे हमने एक एलईडी के साथ इसको इंटरफेस किया, बिल्कुल सेम तरीके से हमें इस 7 सेगमेंट डिस्प्ले को भी आर्डिनो के साथ इंटरफेस करना है। तो हम कॉमन को डालेंगे ग्राउंड पे, देन हमारे पास है 8 पिन्स ABCDEFGH। तो हम DP होता है हमारा डॉट, तो हम इसको एक एक करके हर एक डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब हम इस पे कोड करते हैं उसको। अब अभी हमने लास्ट टाइम जो कोड किया था उसके अंदर हमने क्या किया था, हमने पिन नंबर 2, 3, 4 और इसको हाई किया था। अगर हम सेम कोड इसमें चलाते हैं तो देखते हैं सेम कोड इसमें चलाते हैं क्या होगा।
doesn't go. तो हम देख सकते हैं इसकी 1 2 प्रशांत, यस सर, ये जो दिखा रहा है स्टार सा दिखा रहा है ना, ये यस इसका मतलब ये करंट ओवर ड्रॉ कर रहा है, ये दिखा रहा है। यस सर, इसमें रेजिस्टेंस लगाने तो पड़ेगा। कॉमन, हाँ कॉमन में एक सीरीज रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा तभी ठीक सकते हैं, सारे एलईडीज में यही करना पड़ेगा। तो मैं सर एक ही रेजिस्टेंस लगा देता हूँ ग्राउंड पे। हाँ एक कॉमन ग्राउंड के साथ लगा दो बस। यस, यू कैन सी हमारा लास्ट वाला कोड सेम चल रहा है इस पे। अब हम इस पे एक लिख के देखते हैं कोई कोड। तो अगर हमें इस पे कुछ प्रिंट करवाना है तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन सी हमें एलईडी ऑन करनी पड़ेगी। इसके अकॉर्डिंग हमारी पिन नंबर 2 डॉट पे है, पिन नंबर 3 हमारी इस फर्स्ट पे है, नंबर 4 हमारी इस पे है, पिन नंबर 5 इस पे, 6 7 8 ऐसे ऐसे हमारी क्लॉकवाइज होती हैं इसमें। तो हम उसके अकॉर्डिंग कोई भी हमें डिजिट बनाना है, जैसे हमें 1 बनाना है, 1 बनाने के लिए हमें ये वाली और ये वाली ऑन करनी पड़ेगी। तो ये वाली हमारी पिन नंबर 3 पे है और ये वाली हमारी पिन नंबर आई थिंक जस्ट अ मिनट 1 2 3 4 5 6 7 ये हमारी पिन नंबर 9 पे है। तो हमें अभी 1 प्रिंट करना है, तो हम ये सब हटा देते हैं यहाँ से। शायद यहाँ पे इसको पिन नंबर 9 का आउटपुट सेट करना पड़ेगा। 9 हमारी इधर वाली है, इसका मतलब 1 2 3 उल्टी तरफ से काउंट होता है, मैंने शायद इन द सिमिलर फैशन, मतलब आप अपने आप से अलग अलग ही करके देख सकते हो। ये आप इसी यहीं पे कर करके देखना और बाद में बताना कि कौन से पिन कौन सी जगह पे है, ये आप चेक कर करके कर सकते हो। ये एक टाइप से आपके लिए होमवर्क भी है। ओके, तो यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? हेलो, नहीं कोई डाउट नहीं। कुछ एक्स्ट्रा पूछना हो? क्योंकि आज के लिए हेलो हाँ प्रशांत, मुझे ये बता, हमें जोन सी पिन अगर एक्टिव करनी है उसको ही आउटपुट देंगे? हाँ, ठीक जब भी हम कोई कोड देखो, अभी हमने क्या किया था, इसको 9 को हाई कर दिया, लेकिन वो काम नहीं कर रहा था। हाँ। वो क्यों काम नहीं कर रहा था? क्योंकि उस टाइम हमने इसको 9 को आउटपुट हम रखा नहीं था, तो हम उस टाइम भूल गए थे इसको 9 का आउटपुट रखना, तो वो काम नहीं किया था। तो पहले हमें पिन को उसका मोड देना पड़ेगा कि आपको इनपुट मोड में काम करना है या आपको आउटपुट मोड में काम करना है। अच्छा, हाँ, फिर हम उसको और इसमें हाँ, इस 7 सेगमेंट में हम ये कैसे डिसाइड करते हैं कि कौन सा कैथोड होगा जिसको हमें ग्राउंड करना है? हाँ, 7 सेगमेंट 2 टाइप की होती है, एक तो कॉमन एनोड होती है और एक कॉमन कैथोड होती है। तो कॉमन एनोड में क्या होता है, जो कॉमन पिन होती है वो हमारी पॉजिटिव होती है और जो बाकी पिन होती है वो हमारी नेगेटिव होती है। और एक होती है कॉमन कैथोड। कॉमन कैथोड में हमारी कॉमन वाली पिन ग्राउंड होती है और बाकी सारे पिन हमारी प्लस होती है। तो अभी जब हमने इसको पहले, अगर हम इसको यहाँ पे कॉमन एनोड कर दें यहाँ पे,
अगर हमें कॉमन एनोड कर दे तो हमें ये वाली यहाँ से हटा के इसको 5 वोल्ट्स पे लगाना पड़ेगा, तब जाके ये काम करेगा। अगर देखो तो अभी हमारा कॉमन एनोड है। कॉमन एनोड है। अब अगर हम इसका कोड देखें तो इस टाइम हमने 2 और 9 को हाई करा है। उस टाइम ये हाई करने पे ऑन हो रही थी। अगर हम इसे चलाते हैं अब ये ऑन नहीं होगी, क्योंकि अब इनको लो, अब ये ऑन होंगी लो पे। अगर अब इसको मैं लो करता हूँ, हाँ, लो पे ऑन होगी। ये 2 टाइप की होती है। अगर आप कभी भी खरीदो या कुछ करो तो सबसे पहले आपको देखना होता है कि वो कॉमन एनोड है या कॉमन। अगर आपको ना पता अच्छा, हो तो थैंक यू। अगर ना पता हो तो एक मल्टीमीटर लो और जैसे एक डायोड को चेक करते हैं वैसे ही सेम तरीके से। ओके, इतना समझ आ गया? हाँ, समझ आ गया। तो आज हम एलईडीज का आज हम ज़्यादातर एलईडी का हम ज़्यादातर कर लेंगे। तो अभी हमारा एलईडी का लास्ट बचा है। एलईडी की हमने ब्लिंकिंग देखी, हम ब्लिंक कैसे करवाते हैं एलईडी को। अब हम देखेंगे एलईडी को फेड कैसे करवाते हैं, यानी उसकी इंटेंसिटी कैसे कम करते हैं। अच्छा, तो हमको सबसे पहले इंटेंसिटी कंट्रोल करने के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। तो हम एलईडी की वोल्टेज कम कर दें। तो हाँ, सुन रहे हैं? हम कर दे। और दूसरा, हाँ हाँ, तो हमारी एलईडी की अगर हमें इंटेंसिटी कंट्रोल करनी है तो 2 ऑप्शन होते हैं। तो हम उसको वोल्टेज कम दें। अगर हम उसे कम वोल्टेज देंगे तो कम करंट क्रॉस होगा, तो वो कंपेरेटिवली कम ग्लो करेगी। सेकंड ऑप्शन होता है कि हम उसको बहुत तेज ब्लिंक करवाएं, बहुत तेज ब्लिंक करवाएं। तो हमारी आंखों का नॉर्मल जो फ्रेम रेट होता है कि हम किस फ्रेम से हम किसी चीज़ को देखते हैं वो होता है 25। तो अगर हम इससे कंपैरेटिवली ज़्यादा फ्रेम रेट पे हम अगर कोई एलईडी को ब्लिंक होता हुआ देखें तो वो हमें ब्लिंक होती हुई नहीं दिखेगी, बल्कि वो हमें थोड़ी फेड दिखेगी। तो अगर हम बहुत ही ज़्यादा फास्ट हम एलईडी को ऑन ऑफ करवाते हैं तो वो हमें थोड़ी सी ब्लिंक फेडेड दिखेगी, लेकिन असल में वो इतनी फेडेड होती नहीं है। तो एक तो तरीका है कि हम डिले बहुत कम रख के, डिले को माइक्रोसेकंड में रख के हम इसको ऑन ऑफ करवाएं। और एक दूसरा तरीका है PWM सिग्नल्स को यूज करें। हमने लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था PWM के बारे में, पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन। तो उसमें क्या होता है कि कुछ टाइम के लिए ऑन रहती है पल्स और कुछ टाइम के लिए ऑफ रहती है। वो एक स्क्वायर पल्स होती है। हाँ, तो हम उसी PWM का यूज करेंगे। अब अगर तुम आर्डुइनो पे यहाँ पे अगर थोड़ा सा जूम करके देखो तो इन वाली पिन्स पे एक अलग सा साइन है कुछ पिन्स पे, जैसे 3 पे, 5 पे, 6 पे, 9 पे, 10 और 11। और ये होती है डिजिटल PWM से पिन्स। PWM के आगे ये है यहाँ पे साइन। तो ये जो पिन्स होती है ये PWM एनेबल्ड होती है, यानी इन प्रशांत रिपीट करिए एक बार। जो हमारी पिन नंबर 3, पिन नंबर 6, 9, 10 और 11, इन पिन्स के आगे एक हल्का सा साइन है। ये पिन्स PWM कैपेबल होती है, यानी ये पिन्स पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन वेव्स दे सकती हैं, आउटपुट कर सकती हैं। ओके, वेव का साइन बनाओ। तो ये पिन्स PWM आउटपुट दे सकते हैं। अगर हम एक PWM वेव लें जो 50% ड्यूटी साइकिल पे हो, यानी वो 50% टाइम ऑन रहे और 50% टाइम ऑफ रहे, और ये चीज़ हम बहुत ही फास्ट करें तो हमें एलईडी बार बार ब्लिंक होने के बजाय वो हमें 50% इंटेंसिटी पे चलती हुई दिखेगी।
अगर हम उसका ऑन टाइम घटा दें और ऑफ टाइम बढ़ा दें तो वो हमें और ज़्यादा फेड दिखेगी। अगर हम उसका ऑन टाइम बढ़ा दें, ऑफ टाइम कम कर दें तो वो हमें कंपैरेटिवली ज़्यादा ब्राइट दिखेगी। तो अभी हम यही करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हमें इसको कैथोड को ग्राउंड और एनोड को किसी भी एक PWM पिन पे रखना है। देन हम इसको कोड करेंगे सिमिलर वे में। तो अभी हम यूज़ कर रहे हैं पिन नंबर 11। पहले पिन नंबर 11 को आउटपुट सेट करेंगे। हमें PWM, कभी भी हमें PWM चलाना हो तो हम उसके लिए डिजिटल राइट नहीं यूज़ करते, हम उसके लिए यूज़ करते हैं एनालॉग राइट। तो हम लिखेंगे एनालॉग राइट पिन नंबर 11। आगे हम लिखेंगे एनालॉग राइट पे लिखते हैं, जबकि PWM सिग्नल तो डिजिटल होते हैं। हाँ डिजिटल होते हैं, लेकिन अब हम कोई भी फंक्शन बनाते हैं तो हम उसका कुछ नाम लिखते हैं। तो इस टाइम इसमें हमने नाम एनालॉग राइट ले रखा है उसका, लेकिन होता ही डिजिटल सिग्नल ही है। दरअसल ये आर्डिनो बच्चों को, यस सर, दरअसल ये आर्डिनो बनी है ताकि बच्चों को हम बेसिक कोडिंग और रोबोटिक्स से इंट्रोड्यूस करवा सकें। तो उनके लिए जब भी हम सबसे पहले इसके ट्यूटोरियल्स देते हैं तो हम एलईडी को ब्लिंकिंग के वे में, फेडिंग के वे में दिखाते हैं। तो फेडिंग एक टाइप से एनालॉग होता है। तो सिर्फ उनको ताकि ज़्यादा अंडरस्टैंड हो इसलिए वो एनालॉग राइट फंक्शन यूज़ करते हैं। असल में ये होता डिजिटल ही है, लेकिन हम यूज़ एनालॉग, इसका नाम एनालॉग राइट होता है। तो अब हमने समझ आ गया भास्कर? समझ आ गया। तो हमारा ये फंक्शन हो गया एनालॉग राइट। अब हमने दी पिन नंबर, देन हमें देना है किस ड्यूटी साइकिल की हमें वेव देनी है। इसकी फ्रीक्वेंसी फिक्स होती है, फ्रीक्वेंसी चेंज करने के लिए अलग फंक्शन होता है, लेकिन इसकी इस टाइम फ्रीक्वेंसी फिक्स है। अब हम इसका ड्यूटी साइकिल चेंज कर सकते हैं। तो ड्यूटी साइकिल इसका चेंज कर सकते हैं हम 0 से लेके 255 तक, ठीक है। तो हम इसकी इंटेंसिटी 0 से 255 के बीच में अगर कुछ भी रखते हैं तो हम उसी ड्यूटी साइकिल को हम देंगे। जैसे हम ड्यूटी साइकिल देते हैं अगर 100, हम ड्यूटी साइकिल देते हैं 100, तो इसको एक बार सिमुलेट करके देखते हैं। ये ग्लो हो गई। अब हम इसका ड्यूटी साइकिल थोड़ा बढ़ा के देखते हैं। शायद ये ऑनलाइन सिमुलेटर बेस पे कोई खास अब ये कंपैरेटिवली लो है। अगर हम इसको बढ़ाते हैं, देखो अभी कंपैरेटिवली ब्राइट है। तो हम इसे एक बार लूप लगा के देखते हैं जिससे हमें ज़्यादा बेटर समझ आएगा। जिसको लूप का नहीं पता तो एक बार देख लेना लूप कैसे लगाते हैं। लूप्स और कंडीशंस इसमें बहुत कम आते हैं जब भी आप कोई भी कोड करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं फॉर लूप कैसे लगाते हैं। फॉर लूप लगाने के लिए हम लिखेंगे फॉर, फिर लिखेंगे हम कोई इनिशियल वैल्यू, आई को सबसे पहले इनिशियल वैल्यू देंगे हम 0। देन हम लिखेंगे उसकी कंडीशन के आई कितना बड़ा हो सकता है, लेस देन 256। इसका मतलब आई की मैक्सिमम वैल्यू 256 है। फिर हम लिखेंगे कंडीशन, यस सर, जो ड्यूटी साइकिल है ना वो 0 से 100 तक जाता है, बस वो उसके बियॉन्ड नहीं जाएगा। सर आर्डुइनो में ना ये 2⁵ के अकॉर्डिंग से चलता है, तो 0 से 256 में कुछ भी लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है। वैसे तो सर हम अगर परसेंटेज में देखें तो 0 से 100% तक होता है। हाँ, लेकिन इसमें आर्डुइनो में थोड़ा कोडिंग के हिसाब से 256 तक ले रखा है। अच्छा ये ठीक है। 2⁶ होती है 256, तो उस टाइप से 2⁵ जैसे उस टाइप से।
तो हमने स्टार्ट किया हमारा लूप फंक्शन। लूप फंक्शन ये क्या करेगा, ये इस i = 0 से स्टार्ट होगा और ये प्लस करता जाएगा जब तक i 256 नहीं हो जाता। इसका मतलब इस फंक्शन के अंदर जो भी चीज़ हमारी लिखी जाएगी वो 256 टाइम्स तक चलेगी। तो हम इसे लिखते हैं, इसके अंदर हम लिखेंगे एनालॉग राइट। अब हम इसके आउटपुट में देंगे i। अब ये फंक्शन जब पहली बार चलेगा तो उस टाइम i की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ पे हमारी i की वैल्यू 0 आएगी। देन उसके बाद ये सेकंड टाइम चलेगा तो i की वैल्यू 2 होगी, तो हमारी i की वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी। ऐसे करते करते 256 टाइम तक चलेगा और हर बार i की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। अब हम इसमें थोड़ा सा डिले डालते हैं ताकि हमें ओके, तो हमने 10 का डिले दे दिया। अब हम हर बार जब ये लूप चलेगा तब i की वैल्यू बढ़ती जाएगी और हमें उसकी इंटेंसिटी दिखेगी। हम इसको एक बार चला के देखते हैं कि कैसा चल रहा है। देखो ये पहले 0 इंटेंसिटी, फिर उसके बाद इंटेंसिटी बढ़ती जा रही है और एक पीक पे पहुंचती है और उसके बाद दोबारा 0 से स्टार्ट हो जाती है। हमें सपोज अब हमें एक बार इसको टॉप पे लेके जा रहे हैं, फिर धीरे धीरे वापस लेके आना है, तो हम दोबारा से फॉर लूप लगा सकते हैं। इस बार हम फॉर लूप लगाएंगे उल्टा। उल्टा मीन्स हम पहले i की वैल्यू 255 रखेंगे, i को ग्रेटर देन i को हम करेंगे माइनस माइनस, यानी इस बार हम लूप को उल्टा लगा रहे हैं। पर इनिशियल वैल्यू 255 है और उसके बाद वो कम होती जाएगी। तो ये हमने लूप लगा दिया एक और। अब हम इसको देखते हैं। स्टार्टिंग में हमारी इंटेंसिटी 0 से 255 जा रही है, इंटेंसिटी कम होते हुए दोबारा 0 आ रही है, दोबारा अप जा रही है। तो इस टाइप से हम बेसिक आर्डिनो पर फेडिंग के कोड्स लिख सकते हैं। अगर हम ये सिमिलर हम RGB LED पे करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं अलग अलग। तो आज हमने बेसिकली काफ़ी सारी LEDs देख ली हैं, LEDs के अलग अलग फॉर्म। सबसे पहले हमने एक सिंपल LED देखी थी जिसको हमने पहले ऑन किया था, देन हमने उसको ब्लिंक करवाया था, देन उसके बाद हमने एक 8GB LED को यूज़ करके देखा, देन उसके बाद हमने एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले को ऑन करके देखा, देन उसके बाद हमने एक सिंपल LED को फेड करवाया यूजिंग PWM। तो आज के लिए हम LED तक इतना ही रखेंगे। तो अगर किसी के मन में कुछ क्वेश्चंस हो तो वो पूछ सकता है।